So hello and welcome to the class. Today we are going to discuss about a very important chapter of the science, that is combustion and flame. So today we will be discussing about the combustion and we will also be discussing about the flame. Okay? So get ready, take out your notes and be ready for it. My dear students, firstly we have to understand that what is a combustion. Okay? So combustion we can say the burning process, or in Hindi we used to say combustion dahan. Dahan hona, like we used to do Holika Dahan in the festival of Holi. So there is something that becomes dahan. Okay, that becomes. So what we will say? We will say the process of burning of substances in oxygen with the evolution of heat and energy. What happens if there is a substance and that will burn? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं पाएगा. It will not be able to burn it. ठीक है? So if there will be any substance that will burn in the presence of oxygen, okay, with the evolution of heat and energy, that process will be called as what? That process will be called as combustion. So we can say कि if we have to burn something, there must be the presence of oxygen. Because if there will be the presence of oxygen, then only that particular substance can burn. And what will happen? Suppose we are burning a paper and paper needs to burn in the presence of oxygen. So when the paper will burn, what materials, what things it will give out? First thing, it will give you the heat. Second thing, it will also give you the light. Okay, so that's why what happens, it is the process एक ऐसा विधि है जलने का जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रोसेस में जलता है, और इवोल्यूशन मतलब होता है निकालना या देना, और हमें हीट और एनर्जी देता है. इट गिव्स अस हीट एज वेल एज द एनर्जी. नाउ वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर देयर. क्योंकि देयर आर सम सब्सटेंसेस जो जल सकते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस जो जल नहीं सकते. सो वी हैव टू गेट टू नो दैट व्हाट आर दीस सब्सटेंसेस. ओके, so there are two substances. First we can say combustible substance. What we can say? Combustible substance. Second we can say incombustible substance. तो चलिए आगे जानते हैं इन सब के बारे में. Okay, now we have the topic that I was talking about, the combustible substance. ठीक है? So combustible substance के बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है? देखिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजीली बर्न हो जाते हैं, जो इजीली जल जाते हैं. ठीक है? जैसे हम कह सकते हैं वुड, लकड़ी, हम कह सकते हैं पेपर, वी कैन से पेपर, वी कैन से कॉटन, वी कैन से क्लॉथ. ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच आर इजीली कैचिंग फायर, दे विल बी नोन एज combustible substance. ठीक है? अब व्हाट इज दैट? सब्सटेंसेस व्हिच burn in air to produce heat and light. Suppose we are burning this LPG. Okay, LPG is what? We have liquefied petroleum, then we have gas. We have liquefied petroleum gas. When we are burning it, what it is giving us? It is giving us the heat. And the second thing, it is giving us the light energy. It is giving us the heat, and as well as it is also giving us the light energy. ठीक है? So what happens? जब ये सारी चीजें बर्न करते हैं तो हमें दो चीजें देते हैं, हमें हीट भी देते हैं और हमें लाइट एनर्जी भी देते हैं, and that is the reason they are called as combustible substance. Okay? What we have example? Wood, coal, charcoal, we have kerosene, petrol, diesel, LPG. Okay, we have CNG, compressed natural gas. Okay, so these are the
एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, इफ देयर इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, सो देयर मस्ट बी ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस आल्सो। ठीक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, सो व्हाट आर द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस आर द सब्सटेंस जो क्या होगा बच्चा, बिल्कुल अपोजिट होगा। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं that do not burn in air और ऑक्सीजन, जो क्या करता है, जो एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं करेगा। सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ स्टोन, ठीक है, स्टोन के पास ऑलवेज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द स्टोन। व्हेन यू अप्लाई हीट और व्हेन यू burn it, this stone will not be able to burn, this stone will not be able to burn means क्या होगा, ये ना तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और ना तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दैट्स व्हाई ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। वी हैव स्टोन्स, we can say bricks, we can say water, that is a liquid, etc. They all comes in a process of non-combustible substance. Clear? Now we will move further with this. Okay, moving further, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? What about that? See, कुछ पूछना हो तो पूछो। मैं सर आप कौन सा पढ़ा रहे हैं, ये मतलब सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फोकस हियर। Otherwise you are not focusing here, then that means you have a genetic problem. Now we will move with the combustion. We have to understand about the process of combustion that I have already told you. Okay, this is a detailed definition of that process in which a substance react with oxygen to produce heat is called combustion. The substance which undergoes combustion is called as combustible substance. The substance which does not goes combustible substance, that is called as incombustible substance. Okay, now we will be having what are the conditions that are necessary, what are the conditions that are necessary for the combustion. ठीक है, देखो अगर हम बात करें conditions की, if you talk about the conditions, so we will be talking about the first thing that is important is called as air. The second thing कि वो combustible substance है। Suppose you have taken incombustible substance, आपने stone ले लिया, you have taken a stone, so you will not be able to burn the stone, आप stone को burn नहीं कर पाओगे, so that is an incombustible substance for you. ठीक है, so what you have to take, there must be two conditions, there must be the presence of oxygen and there it must be a combustible substance. ये क्या होना चाहिए, ये combustible substance होना चाहिए। अब कैसे प्रूव करेंगे? for that what we have taken, we have taken a glass jar, we have taken one candle, हमने क्या लिया है, एक ग्लास जार ले लिया है और एक कैंडल ले लिया। we have taken these two things. Okay, what will happen, we have burned it, we have burned the candle, and what we have done, we have just put the glass on the candle. what will happen, जब तक ऑक्सीजन उस ग्लास के अंदर रहेगा, means it will be limited because it is airtight, limited oxygen will be there, तब तक ये जलेगा। after that it will light off, वो बंद हो जाएगा because the supply of oxygen is denied, because the supply of oxygen is denied, जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बंद हो गई। ठीक है, that's why this experiment proves us that what, that the presence of oxygen and it must be a combustible substance, these are the two conditions that are necessary for the combustion, that are necessary for the combustion. Okay, now moving further we will see the products of combustion, we will see the product of combustion. Okay, now class, that's a very important thing that you have to know कि combustion के बाद क्या बचेगा, what are the products, what are the, so we have two things. See, these things we have taken a methanol, what we have taken, we have taken a methanol, we suppose we take the example of methanol. So when we take methanol, ठीक है, this is methanol, what is methanol,
CH3OH, this is a hydrocarbon, this is a hydrocarbon, this is methanol। ठीक है, हमने मेथनॉल का एग्जांपल लिया, लेकिन उससे पहले आपको मैं रिएक्टेंट बनाना चाहता हूँ। देखो ये जो चीजें होती हैं, दिस इज आगे आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास में, जो आपस में रिएक्ट करते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। बाद में जो चीजें बचती हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? तो वन वी हैव अ रिएक्टेंट, वन वी हैव अ प्रोडक्ट। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन। वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन। हम जो कंबस्टन है उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन, जब हम प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? सपोज वी हैव टेकन मेथनॉल, ठीक है, अब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया है, वी हैव बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट इट विल प्रोड्यूस? सी, जब भी किसी सब्सटेंस का, कंबस्टिबल सब्सटेंस का रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा। क्या करेगा? इट विल इमिट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर, तो क्या बेस करता है कि जब कंप्लीट कंबस्टन होगा, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देयर विल बी टू थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट नाउ इफ इट विल बी ए इनकम्प्लीट कंबस्टन, अगर वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, तो अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा जो कि एक पॉइजनस गैस है, प्लस water will be there. So if there will be incomplete combustion, so there will be carbon monoxide and there will be water we will be having. ठीक है? So two things we have to remember in this. What we have to remember, that for the complete combustion, if there will be having, then there will be carbon dioxide and water. अगर incomplete combustion है, there will be carbon monoxide and water. कैसे जाना हमने मेथनॉल पे एग्जांपल ले लिया था और मेथनॉल का रिएक्शन करा करके, ठीक है, हमने ये चीजें पाई, ठीक है। नाउ बेटा वी विल मूव फर्दर विद दिस। हम आएंगे हियर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन वाज देयर सिमिलरली, ठीक है। सो वी विल मूव फर्दर, ठीक है। देखिए डरना नहीं है, क्या हुआ? डर गए? नहीं। जिन बच्चों का एम, फोकस, अगर जिन बच्चों का एम और फोकस क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पे है, वो एम है कि नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्टडी, भले ही वो क्लास 8 हो, भले ही वो क्लास 9 हो, भले ही वो क्लास 10 हो, दे विल बी सक्सीड। सो आपकी एक मेंटालिटी नहीं बनानी है कि हाँ, आई हैव टू मेक अ मेंटालिटी दैट दिस इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। डोंट बिकम लाइक ए रिमोट, ठीक है, डरिए नहीं, ठीक है। नाउ वी विल कम टू अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर, ठीक। अब हमें ये समझना है कि इग्निशन टेम्परेचर वो होता क्या है, व्हाट इज ए इग्निशन टेम्परेचर। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इग्निशन टेम्परेचर, पहले हम आ जाते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस पे। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू कि भैया क्या करेगा, वो जल्दी कैच फायर करेगा, इट विल कैच फायर इजीली, ठीक है। क्या इवैल्यूएट करेगा? हीट इवैल्यूएट करेगा, लाइट इवैल्यूएट करेगा। अब क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर, एक छोटा, एक लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस, द मिनिमम टेम्परेचर व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे सब्सटेंस क्या करता है, कैच कर लेता है फायर, दैट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बहुत लोवेस्ट है, एक पेपर के लिए बहुत लो टेम्परेचर, एक लोवेस्ट टेम्परेचर जो भी होगा, एक चिंगारी, एक फायर, एक क्रैकर्स, एक स्पार्कल, वो क्या होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर होगा किसी भी सब्सटेंस को फायर लगाने के लिए। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द थिंग दैट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर, और उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। वी कैन से
कि अलग-अलग सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है, पेपर का आईटी अलग है, वुड का आईटी अलग है। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस दे आर हैविंग डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस का, हर एक चीज का इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं होगा, ठीक है। एक पेपर आप लेते हैं, यू बर्न ए पेपर वेरी इजीली, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, वुड है वो इजीली नहीं करेगा, इट विल टेक सम टाइम। सो वो है इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए सब्सटेंस टू कैच फायर, दैट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। Okay, we can take substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called as ignition temperature. We can say petrol, we can say alcohol, LPG, CNG and etc. They are ignition temperature. Okay, now we will move further with this. Conditions necessary for combustion. I have already told you what are the conditions that are necessary. We must have a fuel, air, heat. ठीक है, these are the conditions. There must be the fuel, there must be the presence of air supply to oxygen, there must be heat to raise the temperature beyond the ignition temperature, and a substance will not burn without any one more of these conditions. अगर इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं होता है हमारे पास, we are not having a thing, then that means that substance will not burn. ठीक है, जैसे स्टोन ले लिया एग्जांपल, ब्रिक ले लिया, अब ब्रिक के पास फ्यूल ही नहीं है, वो अपने अंदर, उसके अंदर फ्यूल नहीं है, सो बर्न नहीं करेगा, इट विल नॉट बर्न। नाउ मूविंग फर्दर, ओके, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? देखो, जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थे, अगर हम उसे क्या करते हैं, अगर हम उसे कट ऑफ कर देते हैं, हम उसे कट ऑफ कर देते हैं, कंडीशन कौन है उसे? एयर होना चाहिए, देयर मस्ट बी द एयर, देयर मस्ट बी द फ्यूल, देयर मस्ट बी द हीट। तो इन तीनों कंडीशन में से 1 2 3 अगर किसी एक कंडीशन को हम स्टॉप कर देते हैं तो फायर मतलब रुक जाएगा, द हीट विल, द बर्न विल स्टॉप। सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, वी हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर्स, वी हैव सप्लाइड द वाटर। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर इमिट्स मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो इमिट करता है मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी कैन से द फायर एक्सटिंग्विशर्स मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं, क्योंकि क्या होगा, एयर जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगा, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल बी स्टॉप, ठीक है, और उसकी इग्निशन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और देयरफॉर कट ऑफ हो जाएगा सप्लाई ऑफ एयर, और क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल आर बोथ कंट्रोल्स दी फायर। तो जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं फॉर कंबस्टन, उनमें से किसी एक कंडीशंस को हम ब्रेक कर देंगे and easily we can control the fire, ठीक है। now आगे बढ़ते हैं हम इसमें, we will move, see these are the fire extinguishers we are using for controlling the fire. methods of controlling fire, क्या क्या methods हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं अपना, जिससे हम अपने फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। so the methods are by using water, मैंने पहले बताया, पहला है we will use the water to control. So water is the most common fire extinguisher. It can be used only when the materials like wood, paper, etc. are fire. And water cannot be used if electrical equipments are on fire. Okay? Then because the water conduct electricity and can harm by trying to put out the fire. तो वाटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ये हार्म कर सकता है हमें, ठीक है। तो वाटर का नाम यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड कंडक्टर, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर होता है, वाटर इज ए गुड कंडक्टर, तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगा, जहां पे लाइट होगा, वहां पे हम क्या करेंगे मुन्ना, वहां पे पानी का यूज नहीं करेंगे, और जगहों पे हम वाटर का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा
देगा, इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हाट द कार्बन डाइऑक्साइड विल डू, इट विल इंक्रीज or it will decrease the amount of oxygen. When there will be no oxygen, there will be no combustion. Clear? Now we have to come to the keywords. We have one more thing, that is a inflammable substance. Inflammable substance and flammable substance. देखिए inflammable substance में क्या समझना है, we have to understand very well. In the inflammable substance, we have to understand in the inflammable that the substance which have a very low ignition temperature and can easily catch fire. तो ऐसे substances जिनका ignition temperature क्या हो ना, बहुत ही लो हो, उनका ignition temperature क्या हो, बहुत ही लो हो, वही inflammable substance कहलाते हैं. मतलब उनका ignition temperature is very low, that's why they are called as inflammable substances. ऑलरेडी मैंने बताया है, बस एक रिकैप था आपको याद दिलाने के लिए. क्या भूल जाते हो आप, डाइवर्ट हो जाते हो. डाइवर्ट नहीं होना. The one who is focused on his goals is the person who will achieve his goals. So आपको क्या रहना है, डाइवर्ट नहीं होना है, आपको फोकस रहना है. ठीक है. नाउ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, you have to understand. Now we will come to the types of combustion. We will come to the types of combustion. ठीक है. So types of combustion. So अब तक हम लोगों ने combustion के बारे में पढ़ा. We will understand about the types of combustion. तो types of combustion क्या होगा? Types of combustion हम लोग 3 तरीके के होते हैं. We have rapid, spontaneous and explosion mechanism. तो ये चीज हम लोग we will discuss in the part 2 वीडियो. इसको हम लोग part 2 में डिस्कस करेंगे. वेरी वेल. फॉर जनरल पर्पस में आप जान लीजिए कि ये होते हैं क्या, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोजन कंबस्शन, ये होते हैं. टिल देन part 1 you have to recap, you have to understand very well, and you have to make the notes, and then you have to present here. Till then what you have to do, you have to समझ रहे हो. ठीक है. Just wait for the second video. Till then, goodbye, take care, have a good day, study well.